Namaskar, welcome to CCA Rules 1965 classes. Before this, we have discussed about disciplinary proceedings, and during discussion of the disciplinary proceedings, we have seen the judge role of inquiry officer. So, inquiry officer is very powerful in departmental inquiry. So, now we will see what are the functions of inquiry officer. So, as stated in rule number 14(2), the basic purpose of appointment of inquiry officer is to inquire into the truth of the imputation of the misconduct or misbehavior against a government servant. So, prime responsibility of inquiry officer is to find out the truthness, correctness, fact of the imputation, allegation, blame, charge against a government servant. Some allegation has been leveled against a government servant and inquiry has been ordered, and it is the duty of the inquiry officer to find out the truth, so that justice can be done with the department also and with the alleged government servant also. What are the various activities performed by inquiry officer for the discharge of the above function? So, his first and last duty is to find out the truth, to find out the fact. So, for that he has to perform certain activities. These activities may be broadly classified as pre-hearing stage, preliminary hearing stage, regular hearing stage, post hearing stage. At any stage during the inquiry, टैकलिंग सम अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे जो झगड़ालू स्वभाव के होंगे, जिनकी टेंडेंसी थोड़ी बदल चुकी होगी, उनको भी टैकल करना इनके एक्टिविटीज़ में आता है. कैसे करेंगे? द डिटेल्स ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. So, this is the function of the inquiry officer. Now, what are the activities to be performed by the IO during the pre-hearing stage? So, we have seen this, the pre-hearing stage is the first stage. So, verifying the appointment order and the enclosed documents. So, inquiry officer को एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से, उसको चेक करना है जेन्युइननेस, उसमें साइन है कि नहीं, करेक्टनेस है कि नहीं, उसके साथ इनक्लोजर अटैच है कि नहीं. अगर ये सब ठीक ठाक है तो एज ए कर्टसी उनको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर इशू कर देना चाहिए कि हाँ मुझे ये सब मिल गया है. प्रिपरेशन ऑफ डेली ऑर्डर शीट, दिस विल बी डन थ्रू आउट द इंक्वायरी. जब जब मीटिंग होगी जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन DOS, daily order sheet will be prepared. It will be signed by the inquiry officer, by the presenting officer and by the charged officer. तीनों मिल करके इसको साइन करते हैं. Analyzing and understanding the charges, चार्जेस को समझना है. फिक्सिंग द डेट फॉर प्रिलिमिनरी हियरिंग, प्रिलिमिनरी हियरिंग जो फर्स्ट हियरिंग है उसके लिए डेट फिक्स करना है. सेंडिंग कम्युनिकेशन टू द पार्टीज अबाउट हियरिंग, जब भी नेक्स्ट मीटिंग कन्वेन करेंगे तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को एंड चार्ज ऑफिसर दोनों को इंटीमेट करेंगे. इन्फॉर्मिंग द कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ऑफ चार्ज ऑफिसर एंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इन दोनों के कंट्रोलिंग ऑफिसर को भी इंटीमेट करना है सो दैट वो स्पेयर कर सके इनको. ascertaining as to whether the charged officer has finalized a defense assistant and if so informing the controlling officer of the defense assistant. अगर चार्ज ऑफिसर ने किसी डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लिया है तो डिफेंस असिस्टेंट का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको भी इंटीमेट करना है.
What is the scope of verification of appointment order and the enclosed documents? सो इसमें क्या है, आईओ के पास अपॉइंटमेंट लेटर के साथ इनक्लोजर्स मिलते हैं। सो आईओ क्या करते हैं, उस अपने अपॉइंटमेंट लेटर को चेक करते हैं, उसके साथ इनक्लोजर को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद से वो कम्युनिकेट करते हैं कि ये सारा सब कुछ ठीक ठाक है, सब मिल गया है। Any deviation in this regard will constitute an inaccurate defect in the inquiry. The complete proceeding will be liable to be quashed if the IO had been appointed by someone other than the disciplinary authority. So ये जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी में किसी प्रकार का अगर लूप होल है तो पूरी इंक्वायरी ही क्वैश हो जाएगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब जब डेली ऑर्डर शीट को साइन करना है तीनों पार्टी को, तो आइए जान लेते हैं कि DOS क्या होता है। DOS डेली ऑर्डर शीट क्या होता है। डेली ऑर्डर शीट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द केस हैंडल्ड बाय द IO ड्यूरिंग अ डे। सो एक दिन में जो कुछ भी बातें होती हैं, प्रेजेंटिंग ऑफिसर की तरफ से हों, चार्ज ऑफिसर की तरफ से हों, कुछ डॉक्यूमेंट्स को वो लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हों, कुछ विटनेस को रिप्रोड्यूस कर रहे हों, कुछ कमियां बता रहे हों, कुछ आगे प्रोग्रेस करने हो, जो कुछ भी करना है वो डेली ऑर्डर शीट में एंट्री होगी। इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय IO। इंक्वायरी ऑफिसर इसको प्रिपेयर भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। वाइल नो डेफिनेट फॉर्मेट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस, इट इज़ डिजायरेबल टू इंडिकेट द फॉलोइंग इन द DOS। DOS का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो नहीं है, बट अगर ये सब रहेंगे तो कंप्लीट माना जाएगा। सीरियल नंबर ऑफ द ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, डेट लिखना है, किस डेट का है ये, पार्टी प्रेजेंट, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर एंड डिफेंस असिस्टेंट, ये सब जो भी प्रेजेंट है उनको लिखना है। व्हाट हैपेंड, उस दिन क्या हुआ, उस दिन कौन से विटनेस नंबर से एग्जामिनेशन हुआ, किसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, किसका री एग्जामिनेशन हुआ, उसके कंक्लूजन पे क्या उसका मैसेज निकल रहा ही। अकॉर्डिंगली रिक्वेस्टेड दैट द नेक्स्ट डेट हियरिंग में बी हेल्ड आफ्टर 2 वीक्स। सो नेक्स्ट डेट की हियरिंग का डेट क्या दे रहे हैं, और उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज कंसर्न्ड, तीनों का, आईओ का तो साइन होगा ही, प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर दोनों का साइन होगा इसमें। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ DOS? सो डेली ऑर्डर शीट जो है, it will be the most authentic record for ascertaining as to what happened in the course of inquiry because it is signed by all present. So ये डेली का रिकॉर्ड है। DOS जो है डेली ऑर्डर शीट है, डेली में क्या क्या हो रहा है इंक्वायरी में, जब इंक्वायरी मीट हो रही है तो उस दिन क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो सारे एक्शन को उसमें एंट्री किया जाता है। IO, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर तीनों साइन करते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा कंक्रीट प्रूफ है कि उस दिन में ये क्या क्या हुआ है। बाद में कोई मुकर जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले साइन कर रखा है। Inquiring authority should therefore pay adequate care to the accurate recording of DOS. All the opportunity granted to the PO needs to be recorded without fail because these will help in countering the allegations, if any, of inadequate opportunity raised by the charge officer at the later stage. चूँकि DOS मेंटेन किया जा रहा है डेली बेसिस पे, कौन पार्टी आया, क्या उनका उस दिन का जॉब था, उस दिन उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, क्या प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट नहीं किया, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो रही हैं। इसलिए इन लेटर डेट चार्ज ऑफिसर ये नहीं कह सकते कि मुझे एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कहने के लिए। तो इसलिए DOS मेंटेन करना बड़ी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद से आर कॉपीज ऑफ द DOS अप्लाई टू ऑल द पार्टीज़। कॉपी ऑफ DOS मस्ट बी गिवन टू द पार्टीज प्रेजेंट एंड साइनिंग इट। जो प्रेजेंट हैं, जो साइन कर रहे हैं, उनको एक कॉपी DOS की देनी है। इससे क्या हो जाएगा, दिस विल मेंटेन मैनिफेस्ट एंड बोनाफाइड ऑफ द अथॉरिटीज इन केस डेलिंक्वेंट ऑफिशियल एलिजेस डिनाइल ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बायस मालाफाइड। सो एक जो साइन करेंगे उनको एक कॉपी दी जाएगी। व्हेन इज डेली ऑर्डर शीट टू बी प्रिपेयर्ड?
Daily order sheet are to be prepared whenever there is a progress in the case, not only when hearing takes place. Thus, the first daily order sheet may be made on the day when IO receives his/her appointment letter. It may read as under. So इस तरीके से एक डेली ऑर्डर शीट बनाना है. इस ऑर्डर शीट को ऐसे बनाना है, ऐसे बना करके मेंटेन करना है. What are the functions of the IO during the preliminary hearing stage? So preliminary hearing stage में IO के क्या क्या, इंक्वायरी अफसर के क्या क्या फंक्शन है. Making arrangements for conducting the hearing, setting the stage for smooth conduct of hearing, asking the statutory questions, finalizing. Asking the statutory questions means वो चार्ज अफसर से पूछेंगे आपको चार्जशीट मिल गई क्या, आपने पढ़ लिया उसको, आपको समझ में आया, आपने उसका कुछ रिप्लाई दिया है क्या, आप उस चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, आप उस चार्ज को डिनाई करते हैं. ये सब स्टैट्यूटरी क्वेश्चन में आ जाता है. फिक्सेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डिफेंस असिस्टेंट, फिक्सिंग डेट्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द ओरिजिनल फॉर द डॉक्यूमेंट, फिक्सिंग डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, फाइनलाइजिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट विटनेस एडमिसिबल फॉर डिफेंस, टेकिंग एक्शन फॉर प्रोक्यूरिंग एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, setting the issue of disputed documents, taking the documents on record, डिसाइडिंग ऑन द रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट. दोनों पार्टी में से जो भी पार्टी नेक्स्ट डेट लेना चाहेगी उसके बारे में भी डिसाइड करते हैं. व्हाट आर द पोस्ट हियरिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द आईओ. हियरिंग समाप्त हो गई, समाप्त होने के बाद से आईओ की क्या ड्यूटी है. ड्यूरिंग द लास्ट हियरिंग द आईओ विल फिक्स टाइम लिमिट फॉर द पीओ एंड सीओ टू सबमिट देयर रेस्पेक्टिव रिटेन ब्रीफ्स. Thereafter, the IO prepares his report and submits the same to the disciplinary authority together with the records of the case. So क्या है, जैसे ही हियरिंग ख़त्म होगी दोनों पीओ को और सीओ को दोनों को ये डायरेक्शन इशू होगा कि प्लीज़ सबमिट योर रिटेन ब्रीफ. ये रिटेन ब्रीफ क्या है, जितने दिन तक ये हियरिंग हुई है उस हियरिंग का कंक्लूजन क्या आ रहा है, ये दोनों पार्टी अपने अपने व्यू से अपने अपने तरफ से इसको लिख करके आईओ को देंगे और उसके बाद से आईओ रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट, एंड द सेम टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दे देना है. What is the time frame within which the inquiry is to be completed by the IO? Very, very important question. As per the vigilance manual, inquiry report is to be submitted by the IO within 6 months from the date of appointment. 6 month में आपको इंक्वायरी समाप्त करनी है. अगर किसी कारण से 6 मंथ में नहीं हो सकता है तो आईओ कैन रिक्वेस्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू फर्दर एक्सटेंड इट एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बेसिस ऑफ द नीड कैन फर्दर एक्सटेंड अप टू 6 मंथ. कहने का मतलब कि या तो 6 मंथ में और नहीं तो मैक्सिमम 1 ईयर में इंक्वायरी कंप्लीट करना है. जो 6 मंथ या 1 ईयर में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं करते हैं और चार्ज ऑफिसर को टेंशन में डाल करके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रखते हैं, उनको चाहिए कि एक बार ये विजिलेंस का जो मैनुअल है उसको एक बार देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये बैक फायर कर जाए. तो इस तरीके से हमने इंक्वायरी अफसर के फंक्शन को देखे, एक्टिविटीज़ को देखे, ड्यूटीज़ को देखे, पावर्स को देखे. अब आज का नीति श्लोक. क्षमयादम दया प्रेण्याम सुनृते नार्जवेन च वशीकुर्या जगत सर्वं विनयेन च सेवया. अर्थात क्षमा, दया, प्रेम, मधुर वचन, सरल स्वभाव, नम्रता और सेवा से सब संसार को वश में कर लेनी चाहिए. कहने का मतलब ये है कि जिनको पूरे संसार पर राज करना हो, जो चाहते हैं कि सब उनके वश में हो जाए, जो चाहते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसे ही बाकी लोग भी चाहें, जो लोगों के दिलों पे राज करना चाहते हैं उनके अंदर ये स्वभाव होना चाहिए. अगर ये सारे स्वभाव है तो आप सबके दिलों पे राज करेंगे, लंबे समय तक राज करेंगे. क्या क्या होना चाहिए आपके स्वभाव में? क्षमाशील होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, प्रेम तो कूट कूट करके भरा होना चाहिए, वचन जब भी निकले मधुर वचन निकले, कभी भी कर्कश वचन नहीं निकलना चाहिए,
स्वभाव सरल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, और सेवा होती, सर्विस मतलब सर्विस टू द नीडी पर्सन। इससे क्षमा, दया, प्रेम, मधुर वचन, सरल स्वभाव, नम्रता और सेवा से सब संसार को वश में किया जा सकता है। प्रयत्न करके देख लीजिए। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल सो दैट इट कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल। देखिए ऐसा है, रिकॉर्डिंग करने में टाइम तो लगता ही होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने से आपको 10% 20% भी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, नॉलेज मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।